Today we'll discuss about friction. So it's a very small topic for you, friction. Okay. So what are the things that we'll discuss? Let us see first the notes, or you can take the screenshot. What is friction? There are two types of friction: solid friction, which is external friction, and another is liquid friction. Liquid friction we have already discussed, that is viscosity. Okay, liquid internal friction. Then solid friction are of two types. Static friction means when there is no motion. Okay, means the body is not moving, but we are applying some force. Because of frictional force, the body is not moving. Okay, that is a static frictional force. And once the body is moving, then there is a force acts along parallel to the surface and opposite to the direction of motion. That is called the kinetic friction. Then we have some body which slides in an inclined plane, that is sliding friction, and to minimize the friction we can make it a cylindrical or spherical so that it can roll down. Okay, we have ball bearing for that to minimize the friction, so that is called rolling friction. So we'll focus on static friction. What is it? Then coefficient of static friction. Then we'll discuss the laws of friction. So let us start. What is static friction? Suppose you have a surface, you have a table like this. Okay. Now you have a box like this. Between the surface of this box and the table, the frictional force acts. So frictional force acts here between the surfaces. Now if you try to push this ball with a very small force, say dF, okay, so the body will not move. It's a very small force. Why it is not moving? Though there is a force, there is no acceleration. Okay, what is the reason that the force is not moving? Because some force might have balanced it. So what is that force which is balancing it? This force is the frictional force. Okay. Now you increase this force. If you increase this force, still the body is not moving. It means that this force is also increasing. Okay. Now if you push it with a higher force, then this body will certainly move. But there is a situation, एक सिचुएशन ये भी है कि अगर हम थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया, बॉडी नहीं मूव कर रहा, फिर से बढ़ाया, फिर भी बॉडी नहीं मूव कर रहा. मतलब क्या है, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन मेरा अप्लाइड फोर्स को न्यूट्रलाइज कर रहा, दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑल्सो चेंजेस. ओके, एंड इट रीचेस ए मैक्सिमम वैल्यू. फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर मैं ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दूंगा तो दिस बॉडी विल मूव. सो till the body is not moving, we are applying a maximum force. Okay, that is called maximum value of static frictional force. So when no force is applied, when the force applied is 0, the frictional force is equal to 0. Okay, when the applied force is increased, some force is increased, the frictional force is not 0. When force is increased by a little bit, the applied force is also, this frictional force also increases, this frictional force also increases. Okay, so there is, and it reaches a maximum value beyond which it cannot increase, and then the body starts sliding. When the body starts moving, then the type of frictional force acts slightly decreases. Okay, जब स्टैटिक कंडीशन में है, जब बॉडी मूव नहीं कर रहा और मैंने जितना भी फोर्स अप्लाई किया, मैक्सिमम एक लिमिट तक मैंने अप्लाई किया और बॉडी नहीं मूव किया, उसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स. एक बार बॉडी को मूव करना चालू हो गया, फिर भी एक फ्रिक्शनल फोर्स सरफेस के पैरेलल में ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन काम करते रहता है.
इस फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या करेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, सो हमने क्या देखा, ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है इसका एक सिंगल वैल्यू नहीं है, इट इज ए मल्टी वैल्यूड फोर्स। जब नो फोर्स इज अप्लाइड द वैल्यू इज 0। जब बॉडी जस्ट मूव करने ही वाला है, मैक्सिमम फोर्स अप्लाई किया बट मूव नहीं कर रहा, तो इट इंक्रीज अप टू एफ मैक्स। फिर ये है इसका रेंज। फिर जैसे बॉडी एफ एस मैक्स बोल सकते, फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। फिर जब हम उसको मूव करने गए, मूव होने लगा, तो ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। सो द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस देन static frictional force. It is not a single valued force, it is a multi valued force. Okay, now suppose we have this same table here. Now what is happening, suppose we want to apply, there is a pulley here, okay, and a string, एक रस्सी से इसको बांधा, और यहाँ पर एक हैंगर है। हैंगर इज फॉर पुटिंग द वेट। ओके, अच्छा, अभी हैंगर का अपना वेट है, चलो हैंगर का वेट है m0। तो हैंगर का वेट अगर m0 है तो इस डायरेक्शन में कितना फोर्स काम करेगा, m0 इंटू जी। ओके, इस तरह से काम करेगा। नाउ इस अभी भी हैंगर का वेट के लिए ये बॉडी मूव नहीं कर रहा। ओके, इट इज स्टैटिक। तो क्या क्या फोर्स इस बॉडी में अभी काम कर रहा, व्हाट आर द फोर्सेस? एक तो है कि बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज इफ m इज द मास ऑफ द बॉडी देन mg व्हिच इज द वेट ऑफ द बॉडी। ओके, दिस इज एक्टिंग। अच्छा, बॉडी का वेट अगर नीचे तरफ काम कर रहा है तो ये सरफेस एक नॉर्मल रिएक्शन इसमें अप्लाई करेगा। ओके, एंड दिस टू फोर्सेस आर बैलेंसिंग ईच अदर, दैट इज व्हाई द बॉडी इज नॉट मूविंग अप एंड डाउन। ओके, सो वेट ऑफ द बॉडी इज बैलेंस्ड बाय द रिएक्शन। ये जो सरफेस बॉडी के ऊपर रिएक्शनरी फोर्स दे रहा, उससे वो बैलेंस हो रहा। अच्छा, अभी एक तीसरा फोर्स आ गया जो हैंगर का वेट के लिए इसके ऊपर काम कर रहा, तो इसको जरूर कोई बैलेंस कर रहा, इसीलिए ये मूव नहीं हो रहा। दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स इज बैलेंसिंग इट। नाउ सपोज इट इज Fs। अभी हम क्या किए, इसमें थोड़ा सा वेट डाला। ओके, वेट डालने से क्या होगा, ये बॉडी अभी मूव करने लगेगा। तो बॉडी ना मूव करे तो इसके लिए मुझे इसमें भी कुछ वेट डालना पड़ेगा, देन ओनली इट विल गेट बैलेंस्ड। तो जब खाली हैंगर है तो क्या क्या फोर्स काम कर रहा है मेरा, दिस फोर्स अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू दिस ना, दैट इज वेट ऑफ द हैंगर, वेट ऑफ द हैंगर। अच्छा, इसको भी W लिख दिया क्या? ओके, सो m0g बोल सकते हैं, m0g इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, अच्छा, एंड द वेट ऑफ दिस बॉडी W इक्वल टू R। अभी मैं थोड़ा सा इसके ऊपर वेट ऑफ द हैंगर इतना है कि जस्ट ये मूव करने वाला, थोड़ा सा जस्ट मास ऐड करूंगा तो ये मूव कर जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या किया, इसके ऊपर और एक m मास इसके हैंगर के ऊपर डाल दिया, तो कितना हो गया m इंटू जी। तो अभी तो ये मूव करना चालू हो जाएगा। तो मुझे इसको बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर भी एक वेट रखना पड़ेगा, सपोज m डैश। तो अभी टोटल वेट कितना हो जाएगा सेकेंड केस में, W डैश विच इज इनिशियल मास ऑफ द बॉडी प्लस मास पुट ऑन द बॉडी इनटू द g। इतना वेट हो गया बॉडी का, दिस इज मास m, कैपिटल M, एंड दिस इज m डैश। तो टोटल मास कितना हो गया, m प्लस m डैश इनटू g। तो नॉर्मल रिएक्शन भी चेंज हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन भी बढ़ जाएगा, R डैश हो जाएगा। ओके, तो सेकेंड कंडीशन में जब मैंने इस हैंगर के ऊपर कुछ मास रखा तो सब कुछ चेंज हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स बिकम्स F डैश। ओके, नाउ
अभी हमने क्या किया, m प्लस m0 दैट इज इतना मास हैंगर में है इंटू g इक्वल टू दिस इज बैलेंसिंग द फ्रिक्शनल फोर्स एंड वेट that is W dash, that is m plus m dash g equal to the normal reaction. अभी एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि अगर तुम इसको इससे डिवाइड करोगे, मतलब m0g को डिवाइड करोगे किससे, वेट से, ये दोनों वैल्यू पता है हमको, इसका भी मास पता है, हैंगर का मास पता, सब पता है, इन दोनों को डिवाइड करो, जितना वैल्यू आएगा इन दोनों को डिवाइड करो, देखो उतना ही वैल्यू आएगा, m प्लस m0 बाई m प्लस m, दोनों सेम होगा। दिस इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये क्या है, Fs बाई आर, ये क्या है, F डैश एस बाई आर डैश। तो रेशियोज आर सेम, इसका मतलब है Fs बाई आर इज constant, that is the maximum value of frictional force by normal reaction is constant. Okay, so Fs is equal to some constant into R, so Fs is proportional to R. ठीक है, इसको कहा जाता the maximum value of static frictional force is proportional to normal reaction. तो हम क्या कर सकते हैं, जो कांस्टेंट कांस्टेंट हम बोल रहे हैं इसको हम क्या करते हैं, एक इक्वल साइन एंड कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं, इसको बोला जाता है, दिस पर्टिकुलर कांस्टेंट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस इज रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन है कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, हाउ टू फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा, सपोज मुझे ये एक बोर्ड है, ओके, नाउ इस बोर्ड के और ये दोनों सरफेस है, अभी दिस इज द सरफेस, ये सरफेस है डस्टर का सरफेस एंड ये बोर्ड है, इन दोनों के बीच में मुझे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे रखूंगा, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इसको मैं थोड़ा थोड़ा इंक्लाइन करूंगा, ऐसे ऐसे इंक्लाइन करूंगा। देखो एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद क्या होगा, जैसे इंक्लिनेशन बढ़ेगा क्या हो रहा, डस्टर स्टार्ट स्लाइडिंग, तो स्लाइड नहीं कर रहा बट स्लाइड करने वाला ही है, ऐसा जो स्टेटस है, यहां तक आके हम रुक जाएंगे, यहाँ पर स्लाइड करने वाला है, सो दैट एंगल वो हमको निकालना है। मैंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पर एक मेरा डस्टर था, ये एंगल ऐसा एंगल है कि इसके बाद ही जस्ट वो मूव करने वाला था, तो इस समय क्या क्या फोर्स काम कर रहा, एक तो है उसका वेट, इसका तो नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू दिस, और मूव करने वाला किस तरफ है, इस तरफ, तो फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ। ओके, अभी mg का दो कंपोनेंट है, इस वेट क्या कर रहा, नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर रहा, नहीं तो फिर तो ये ऊपर तरफ भागेगा, तो mg का एक कंपोनेंट जो है इस तरफ हो जाएगा, एक कंपोनेंट ये होगा। हमने क्या तुमको अर्लियर वीडियोस में क्या देखा कि एंगल बिटवीन टू लाइंस इज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, ओके, तो इन दोनों लाइन के बीच का एंगल थीटा है, इस लाइन के ऊपर एंगल ये 90 डिग्री है, ओके, ठीक है, इस लाइन और इसके ऊपर ये 90, तो इन दोनों के बीच का एंगल भी थीटा होगा, ये थीटा होगा, ठीक है। सो mg का इस तरफ वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, mg cos थीटा, और इस तरफ वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, mg sin थीटा। तो वेट का जो mg sin थीटा है ये फ्रिक्शनल फोर्स को बैलेंस कर रहा, और वेट का mg cos थीटा कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर रहा,
एट इक्विलिब्रियम जब तक कि वो स्लाइड नहीं कर रहा, तो एफ एस इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, ओके, एंड आर इक्वल टू एम जी कॉस थीटा. So therefore, if you divide, what is mu s? Fs by r. So if you divide this, Fs by r कितना हो जाएगा? mg sin theta by mg cos theta. mg cos theta. So this is tan theta. बस tan theta मतलब जिस एंगल में वो स्लाइड करने वाला है उसका tan ले लो. That gives you the value of mu s. Okay. तो मुझे बोर्ड को स्लाइड करना है, उस एंगल तक स्लाइड करना है जहां जस्ट वो मूव करने वाला है, तो उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ, दैट इज द एंगल ऑफ रिपोज. इस एंगल को क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ रिपोज. जिस एंगल में बॉडी स्टार्ट्स स्लाइडिंग, अबाउट टू स्टार्ट स्लाइडिंग, टेंड टू स्लाइड. ओके, तो वेरी इजी टू फाइंड आउट बाय दिस वे. सो वी हैव अदर मेथड्स आल्सो, सो we'll discuss in our next video. Okay. So now we will discuss laws of friction. What are the laws of friction? First law says that the frictional force does not depend on the area of surfaces in contact. Suppose you have two surfaces like this. These are the area of surfaces in contact, this and this. Now, same surfaces having largest areas are taken, okay? These two surfaces having larger areas, so it will remain the same. If earlier the coefficient of friction was mu s, in case of both the surfaces are static, not moving, about to move, अभी just move करने ही वाला है, उस समय coefficient of friction को mu s कहा जाता है. एक बार अगर बॉडी चलने लगता तो उस समय उसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहा जाता है, और coefficient of friction is represented by mu k. तो अगर सेम दो सरफेस है, सरफेस 1 एंड सरफेस 2, इसका एरिया अगर हमने बढ़ा दिया, सेम सरफेस है बट इसका एरिया जो है इंक्रीज कर दिया, ओके, इसका एरिया जो है बढ़ा दिया, तो क्या फ्रिक्शनल फोर्स चेंज हो जाएगा? इट सेज नो. द फ्रिक्शनल फोर्सेस बिटवीन द टू, the frictional force between the two surfaces when they are in relative motion, it will not affected by the areas. Okay, this is the first. Second, so the frictional force is independent of area of surfaces in contact. So frictional force does not depend on area of surface in contact, does not depend on area of surfaces in contact. In contact. ऐसा नहीं है कि सरफेस एरिया बढ़ गया तो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है. ओके. सेकंड, द मैक्सिमम frictional force, the maximum value of static frictional force is proportional to the normal reaction. So Fs is proportional to normal reaction. इसका क्या मीनिंग हुआ? Suppose ये बॉडी है, इसमें रखा हुआ, अभी मैं जब इसको सपोज हैंगर से ऐसे वेट दिया इसके ऊपर और इसको वेट दिया, ओके, नाउ बॉडी इस तरफ आना चाहेगा, ओके, ऐसा एक पोजीशन आएगा, बस थोड़ा सा भी और 1 ग्राम भी वेट बढ़ा दिया ना तो बॉडी मूव करने लगेगा, ओके. तो उस समय क्या करेगा? फ्रिक्शनल फोर्स पैरेलल, इस दोनों सरफेस के बीच में पैरेलल काम करेगा और इसको रेजिस्ट करेगा, बॉडी का मूवमेंट को रेजिस्ट करेगा, ओके. सो ये जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम करता है, जबकि ये रेस्ट में है, चल नहीं वाला है, उस फ्रिक्शनल फोर्स को क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स. तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है ये नॉर्मल रिएक्शन के साथ प्रोपोर्शनल होगा. इसका क्या मीनिंग हुआ? नॉर्मल रिएक्शन मतलब सपोज इसका
इसका मास है m, इस बॉडी का मास m है, तो इसमें कितना ग्रेविटेशनल वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना काम करेगा, m इंटू जी। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, सरफेस बॉडी के ऊपर जो लगाएगा r देगा, ठीक है। अभी फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, Fs विल बी प्रोपोर्शनल टू दिस mg। अगर मैं बॉडी के ऊपर कुछ और रख दिया, इसके ऊपर इसका वेट बढ़ा दिया, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इधर और वेट बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर मैं जैसे वेट इसका बढ़ा दूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका मास हो गया m डैश, दोनों को मिलके मास हो गया m डैश। तो मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, m डैश जी। नॉर्मल रिएक्शन भी मेरा चेंज हो जाएगा, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, ज़्यादा वेट इधर डालना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा फ्रिक्शनल फोर्स भी चेंज हो जाएगा, मतलब इसको हटाने के लिए, टेंड टू मूव का स्टेट में लाने के लिए मुझे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये डिपेंड करता है कि नॉर्मल रिएक्शन कितना है। जितना नॉर्मल रिएक्शन होगा, यानी कि जितना वेट होगा बॉडी का, उतना ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, ओके। अच्छा, इसमें एक चीज खाली याद रखना कि सपोज ये बॉडी है, अभी मैंने इस बॉडी का सपोज मास है 10 kg, तो इसमें ग्रेविटेशनल पुल कितना काम करेगा, 10 इंटू जी, तो 9.8 अगर लेते हैं तो 98 न्यूटन, ठीक है, 98 न्यूटन विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी इसका नॉर्मल रिएक्शन भी उतना ही होगा। अभी सपोज मैंने 0.1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया इस तरफ, रस्सी से बांध के पुली के थ्रू, या फिर नॉर्मली मैं पैरेलल टू द सरफेस खींच रहा हूँ, कैसे भी करके 0.1 न्यूटन अप्लाई किया। अभी 0.1 न्यूटन अप्लाई करूंगा तो चूंकि ये मूव नहीं कर रहा है, तो इस तरफ भी फ्रिक्शनल फोर्स कितना काम करेगा, 0.1 न्यूटन काम करेगा इसको रेजिस्ट करने के लिए। तो ये जो फॉर्मूला है, Fs इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन और Fs इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू n। तो Fs क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू बाय नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू μs। तो क्या μs का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्या ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि अभी चूंकि फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है 0.1 न्यूटन और इसका नॉर्मल रिएक्शन है 98, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 0.1/98 है इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज माय क्वेश्चन, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो अगर ऐसा मैं बोलना चालू कर दूं तो क्या हो जाएगा, अभी μs का वैल्यू हो जाएगा 0.1/98। फिर मैं क्या किया, 0.1 न्यूटन से बढ़ा के इस फोर्स को मैंने 0.2 न्यूटन किया, तो फ्रिक्शनल अभी भी बॉडी नहीं चल रहा, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हो गया 0.2 न्यूटन। तो अभी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर ऐसा है हम लोग का थिंकिंग कि, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा 0.2/98। ये गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं होता है, ओके। इसका मतलब ऑल द टाइम ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शनल फोर्स बाय नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज नॉट करेक्ट। करेक्ट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब इतना फोर्स से खींचो इसको कि बस ये चलने ही वाला है, टेंड टू मूव, द बॉडी इज अबाउट टू मूव। उस समय जितना फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है, उस फ्रिक्शनल फोर्स को उस समय का जो उसका नॉर्मल रिएक्शन है उससे डिवाइड करो तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मिलेगा, ओके। सो नहीं तो फिर क्या हो रहा है, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, ये डिपेंड करता है केवल नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर, ऐसा नहीं है। और एक ही होगा, दोनों सरफेस अगर फिक्स्ड है तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी फिक्स्ड होगा। ऐसा नहीं है कि अप्लाइड फोर्स के ऊपर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चेंज हो रहा है। दिस इज नॉट करेक्ट, ओके। द करेक्ट थिंग इज दिस, व्हेन द बॉडी इज अबाउट टू मूव, उस समय जितना फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है उससे उसका नॉर्मल रिएक्शन को डिवाइड करो, तब तुमको मिलेगा क्या, दिस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। एंड थर्ड क्या है, थर्ड इज वेरी सिंपल, व्हाट टाइप ऑफ सरफेस यू आर टेकिंग उसके ऊपर डिपेंड करता है कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा।
So frictional force depends on nature of surfaces in contact. Okay, frictional force depends on nature of surfaces in contact. अगर स्मूथ सरफेस होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा, रफ सरफेस होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा. बट एक बार अगर ये दोनों सरफेस अगर फिक्स्ड है तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स भी फिक्स्ड होगा. ओके, डिपेंड करता है कि कितना मुझे अप्लाइड मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर, बट दिस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट. ओके, एंड न्यू एस का वैल्यू ऑल द टाइम सेम होगा, दैट इज एफ एस बाई नॉर्मल रिएक्शन जो है, ये फर्स्ट टाइम एफ एस वन बाई नॉर्मल रिएक्शन था, सेकेंड टाइम जब मैंने इसके ऊपर वेट चढ़ाया तो ये नॉर्मल रिएक्शन भी चेंज हो गया. These values are constant. This is called coefficient of static frictional force. तो हमने 3 laws of friction देखा. फर्स्ट लॉ में क्या कहा गया कि it does not depend, the frictional force does not depend on the area of surfaces in contact. सेकेंड लॉ में हमने ये देखा कि frictional force is proportional to the maximum value of static frictional force is proportional to the normal reaction. थर्ड लॉ में देखा कि frictional force depends on only on the nature of surfaces in contact. Okay, अच्छा, अभी मैंने इस तरह का एक बॉडी लिया, अभी इसको मैंने पुली के तरह इस तरह से हैंगर से वेट दिया. ओके, ना जैसे मैं इसमें थोड़ा सा वेट किया दिया तो अभी ये चलने वाला है, तो उस समय का फ्रिक्शनल फोर्स का हम क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स. ये सिंगल वैल्यूड फोर्स नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज मल्टी वैल्यूड फोर्स, है ना. जब कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, रस्सी में कोई हैंगर भी नहीं है, कुछ वेट नहीं है, तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कितना था, 0. तो जैसे ही मैंने इसमें थोड़ा सा वेट बढ़ाया तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया, B हो गया, और थोड़ा वेट बढ़ाया तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स और बढ़ गया. ठीक है, ऐसे करके बढ़ेगा. तो एक पर्टिकुलर वैल्यू तक, 0 से लेकर एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ये बढ़ सकता है. कहां तक बढ़ सकता है, एफएस तक बढ़ सकता है. ओके, सो फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स. इसका रेंज ये है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का. ओके, इट इज नॉट ए सिंगल वैल्यूड फोर्स. Static frictional force is a multi-valued force. When no force is applied, no frictional force acts. As the force increases, the resistive force along opposite direction ये भी बढ़ते रहेगा. एक particular value attain करेगा, उसके बाद और नहीं ये body it will start moving. ठीक है, तो body जब move करने लगता है उस समय जो का जो frictional force है उसको बोलते हैं kinetic frictional force. और उस समय फ्रिक्शनल फोर्स थोड़ा कम हो जाता है. ओके, नाउ इफ वी प्लॉट ए ग्राफ, अगर मैं ऐसा एक ग्राफ प्लॉट करता हूं, सपोज अभी क्या किया, ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स. और इधर मैंने वेट रखा. वेट जितना ज्यादा होगा उतना उसका क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ते रहेगा. ठीक है, तो जब तक बॉडी रेस्ट में था तो जितना वेट बढ़ाया फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ा. मतलब यहाँ वेट यहाँ तक सपोज 0.1 न्यूटन बढ़ाया तो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ गया 0.1 न्यूटन. फिर मैंने 0.2 किया, फिर भी उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ गया क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रहा. सपोज मैंने 0.3 न्यूटन बढ़ाया, फिर भी फ्रिक्शनल फोर्स मतलब इतना ज़्यादा है कि
बॉडी को मूव नहीं होने दे रहा, तो क्या हो रहा, मैं इधर वेट बढ़ाते जा रहा हूँ, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ाते जा रहा हूँ और फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ते जा रहा है। तो क्या हो रहा कि मुझे इन दो ये सारे लाइंस को अगर मैं प्लॉट करता हूँ ना, तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्यों स्ट्रेट लाइन क्यों मिलेगा? बिकॉज इट इज प्रोपोर्शनल। लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू के आने के बाद यहाँ तक क्या था, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू हैज अटेन्ड, एफएस स्टैटिक वैल्यू, फ्रिक्शनल फोर्स का स्टैटिक वैल्यू मैक्सिमम हो गया। अभी जैसे ही मैं इसके थोड़ा सा भी वेट बढ़ा दूं तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है कम हो जाएगा, क्योंकि नाउ द बॉडी इज सेट इनटू मोशन। फिर क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स और बढ़ेगा नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स विल रिमेन सेम। सो दिस इज द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग एंड इट विल रिमेन कांस्टेंट। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया, मैं वेट बढ़ते गया लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ा नहीं, उल्टा क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू जो था उससे थोड़ा सा कम हो गया and the body is set into motion. Okay, so this is the graph between the normal reaction, that is applied force, and frictional force. ठीक है, till it is static tend to move, वहां तक frictional force maximum होगा। एक बार body set into motion हो गया तो it is a kinetic frictional force। तो kinetic frictional force जैसे हमने क्या लिखा ना कि maximum value of static frictional force is proportional to normal reaction, वैसे ही maximum value of kinetic frictional force is proportional to normal reaction। okay, so Fk is equal to, इस proportionality को हटाने के लिए क्या करते हैं, equal sign and some constant, इसको हम लोग mu k लेते हैं, k मतलब kinetic, the body is set into motion, okay, into normal reaction। so क्या हो जाएगा, the kinetic frictional force by normal reaction, okay, equal to some constant Fk by mu k equal to some constant, sorry, Fk by normal reaction equal to this constant mu k। इसको क्या कहा जाता, इन रेशियो को क्या बोला जाता, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू एस को क्या कहा गया था, एफ एस बाई एन इज इक्वल टू म्यू एस, दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हमने क्या बोला कि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना ऑलवेज लेस देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो म्यू एस मेरा कितना हो गया, एफ एस बाई एन, म्यू के क्या हो गया, एफ के बाई एन। अभी एन एन तो चलो ठीक है, एफ एस इज मोर देन एफ के ना, तो म्यू एस विल बी मोर देन म्यू के। सो याद रखना, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का जो वैल्यू है ये काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होता है। ओके, म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के। नाउ म्यू एस को डिटरमाइन कैसे करेंगे, म्यू एस को डिटरमाइन करने का दो तरीका है, एक तो इंक्लाइन प्लेन मेथड और एक है हॉरिजॉन्टल प्लेन मेथड। इंक्लाइन प्लेन मेथड मैंने बताया पहले कि बॉडी को तुम सरफेस पे रखो ऐसे और धीरे धीरे इसका इंक्लिनेशन बढ़ाओ, मतलब बॉडी सरफेस को मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो इस जगह पे आने से क्या हो रहा कि बॉडी इज अबाउट टू मूव ना, थोड़ा सा भी और इंक्लिनेशन बढ़ाऊंगा तो बॉडी क्या हो जाएगा, अभी मूव करने लगेगा। तो ये एंगल को नोट कर लो, थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वी आर डिटरमाइनिंग द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बाय इंक्लाइंड प्लेन मेथड, इंक्लाइंड प्लेन मेथड। ये मैंने एक्सपेरिमेंट करके भी बताया था कि एक पर्टिकुलर एंगल के बाद वो स्लाइड होने लगता। सो व्हाट इज दिस, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा, दैट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। सो वी विल डिफाइन एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, जैसे लास्ट टाइम भी ऐसे मैंने बताया था, लेट अस
रिवाइज अगेन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. जब इंक्लाइन प्लेन मेथड में बॉडी रहेगा तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स तो काम करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, दैट इज द वेट ऑफ द बॉडी. नॉर्मल रिएक्शन कौन देता है? नॉर्मल रिएक्शन सरफेस देता है. किसके ऊपर देगा? बॉडी के ऊपर, ठीक है. तो ये सरफेस बॉडी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन देगा. ये नॉर्मल रिएक्शन जो है ना ऑल द टाइम परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा. जो सरफेस है इन सरफेस के बीच में परपेंडिकुलर है. ओके, तो हमने क्या बताया कि इन दोनों लाइन के बीच में जितना एंगल होता है इन दोनों के परपेंडिकुलर के बीच में उतना ही एंगल होगा, ठीक है. एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स ना. इस लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर खींचा, इसके ऊपर सपोज ये परपेंडिकुलर खींचा, तो ये एंगल भी सेम होगा. क्यों? बिकॉज ये 90 है, ये 90 है, ये दोनों अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों एंगल सेम होगा ना. तीनों मिलके 180 डिग्री होता है. सो एंगल बिटवीन टू लाइंस इज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स. तो ये अगर W है तो W का ओके, सो फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ काम करता? इस तरफ ना. तो W का एक कंपोनेंट इस तरफ काम करेगा विच इज W cos थीटा ना. W cos थीटा यानी अगर वेट mg है W इज इक्वल टू mg, तो इस तरफ कितना काम करेगा? mg cos थीटा नहीं sin थीटा, बिकॉज इसके साथ एंगल कितना है 90 माइनस थीटा. कंपोनेंट ऑलवेज mg इंटू cos ऑफ एंगल बिटवीन दिस होगा. तो cos 90 माइनस थीटा दैट इज mg sin थीटा. और इस तरफ का फोर्स कितना हो गया? mg sin थीटा. अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ काम करेगा? जिस तरफ बॉडी मूव करने वाला है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में. सो मैक्सिमम वैल्यू इधर काम कर रहा. तो एट इक्विलिब्रियम मेरा हॉरिजॉन्टली इट इज बैलेंस्ड, मतलब देयर इज नो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट. तो फ्रिक्शनल वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय mg sin थीटा, ठीक है. एंड वर्टिकली आल्सो इट इज बैलेंस्ड, देयर इज नो वर्टिकल रिजल्टेंट फोर्स. तो नॉर्मल रिएक्शन इज बैलेंस्ड बाय mg sin थीटा. अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन किसे कहा जाता? द रेशियो ऑफ fs बाय नॉर्मल रिएक्शन, इसको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाता. सो दिस इज mg sin थीटा बाय mg cos थीटा. mg cos थीटा, mg कैंसिल, tan थीटा. यानी कि अगर तुमने ये tan 30 डिग्री निकाला तो tan 30 डिग्री का जो भी वैल्यू है ओके ओके, दिस वन इज mg नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg cos थीटा. यस, cos थीटा. So this coefficient of static friction is equal to what? Coefficient of static friction is equal to tan theta. This angle is called angle of friction. So angle of friction वो angle है. Incline method से अगर coefficient of static friction निकालना है तो very easy. दोनों surfaces in contact को रखो, plane को shift करो, जिस एंगल में बॉडी मूव करने वाला है वो एंगल नोट करो, उसका टेंजेंट ले लो. टेंजेंट ऑफ दैट एंगल इज इक्वल टू दिस. ओके, सो नाउ you understood na inclined plane method. Now there is another method to determine the coefficient of static friction. उसको हम लोग क्या कहते हैं? Horizontal plane method. This is inclined plane method. Now we will discuss about horizontal plane method. So the second way of determining this is horizontal plane method. तो इसमें इंक्लाइन नहीं करेंगे. तो सपोज मेरा ये सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर और दूसरा एक सरफेस है ये, और इन दोनों के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ये निकालना है मुझे. ओके, तो मैं क्या करूँगा, इसको हुक
पुली सिस्टम से इसको मैं क्या करूंगा, एक हैंगर लगा दिया. ओके, सो सपोज मास ऑफ द हैंगर इज m0. तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरफ कितना काम करेगा, m0 into g. दिस इज द अप्लाइड फोर्स. ओके, अच्छा, इस बॉडी का वेट है w. w इक्वल टू m into g. नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, n. अच्छा, अभी बॉडी का कुछ ऐसा मूवमेंट का कुछ चांस नहीं है, ठीक है, जब तक ना कि मैं इसके ऊपर वेट बढ़ाऊं. तो मैंने थोड़ा इसका वेट बढ़ाया m, तो कितना ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरफ बढ़ जाएगा, m into g. अब ये वेट, ये इतना मास है कि अभी जस्ट ये मूव करने ही वाला है. दिस बॉडी इज अबाउट टू मूव नाउ. ओके, तब इस तरफ जो है ना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है. थोड़ा सा भी बड़ा हो तो अच्छा, ये जो है कि जैसे मैंने थोड़ा सा बढ़ाया, अभी ये बॉडी जस्ट मूव करने ही वाला है. थोड़ा सा भी और 1 ग्राम भी ऐड कर दिया तो बॉडी मूव करने लगेगा. नाउ दिस इज इन हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम. तो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स को बैलेंस करने वाला कौन है, ये हैंगर का मास प्लस जो वेट पुट ऑन द हैंगर, ये मुझे बैलेंस कर रहा है हॉरिजॉन्टली. ठीक है, दिस इक्वल टू दिस. एंड मेरा वेट को बैलेंस करने वाला कौन है, नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करने वाला कौन है, दैट इज द वेट ऑफ द बॉडी. m है इसका मास, ये जो बॉडी रखा हुआ है इसका मास कैपिटल M. तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किसे कहा जाता है, म्यूएस का डेफिनेशन है रेशियो ऑफ Fs बाई n. Fs के जगह पे हमने क्या, m0 प्लस m इंटू जी बाई m. तो क्या हो गया, मास ऑफ द हैंगर, मास पुट ऑन द हैंगर डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी. दिस गिव्स द वैल्यू ऑफ म्यू एस. वेरी इजी, वी नो दैट व्हाट इज द मास ऑफ द हैंगर, वी नो हाउ मच मास एडिशनली कितना दिया मैंने इसके ऊपर. अच्छा, इसका भी मास पता है तो बस वी कैन फाइंड आउट म्यू एस. So this is another way of determining coefficient of static friction. Now there is an important concept called cone of friction. What is cone of friction? Suppose ये सरफेस है, ओके, इसके ऊपर ये बॉडी रखा हुआ है और मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, कैसे भी करके बाय पुलिंग इट वी आर अप्लाइंग ए फोर्स. ओके, नाउ इसमें क्या क्या फोर्स कम कर रहा, इसका वेट कम कर रहा, ये तो ऑलवेज वेट, ग्रेविटेशनल वेट. ओके, दिस इज इक्वल टू m इंटू जी. तो नॉर्मल रिएक्शन सरफेस इसके ऊपर देगा, नॉर्मल रिएक्शन हो गया. चूंकि मैं इधर एक फोर्स अप्लाई किया, दिस इज द अप्लाइड फोर्स, और ये फोर्स इतना है कि जस्ट मूव करने वाला है. ओके, तो अगर ये अप्लाइड फोर्स है तो इसको क्या है, इधर रेजिस्टिव फोर्स काम करेगा. दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट हियर, Fs, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स. अभी मैं क्या किया, ये और ये दो फोर्स है, इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट मैं निकालना चाहता हूँ. तो क्या करना पड़ेगा मुझे, लॉ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स, वही एक रास्ता है दो फोर्स का रिजल्टेंट निकालने के लिए. तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं एक पैरेललोग्राम बनाया, चूंकि 90 डिग्री है, चलो ये रेक्टेंगल बन गया. तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, द डायगोनल रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट, दिस वी नो, दिस इज द रिजल्टेंट. ठीक है, तो रिजल्टेंट मेक्स सर्टेन एंगल, है ना, सपोज दिस मेक्स एन एंगल सम फाई, the resultant makes an angle phi. Okay, so what is this angle, tan phi equal to how much. देखो ये जो ट्रायंगल है ना, सपोज इसको O नाम दिया, इसका नाम A दिया, इसका नाम B दिया, इसका नाम C दिया. ओके, तो tan phi कितना हो जाएगा, P by B. P कितना है, फ्रिक्शनल फोर्स ना,
ए बी है, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए ओ बी, ये 90 डिग्री है, तो tan फाई कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर हो गया ए बी मतलब एफ एस, तो इसमें tan फाई हो गया ए बी बाई बेस यानी ओ एन. Length of the vector determines the magnitude. Okay, so here AB is how much? AB is the frictional force Fs, and On कितना है? Normal reaction, that is the weight, that is the normal reaction. अच्छा, अगर ये कोप्लानर फोर्स है, कोप्लानर मतलब एक ही प्लेन में एक्ट करने वाला, तब तो क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल बनेगा. मतलब ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन है और ये मेरा रिजल्टेंट है. ठीक है, तो इसको लेके एक ट्रायंगल बना. ठीक है, इस ट्रायंगल को मैंने ऐसे एक्सटेंड कर सकता हूँ इस तरफ. तो ये जो ट्रायंगल है, ये एंगल अगर फाई है तो ये एंगल भी फाई होगा. सो दिस इज कॉल्ड द ट्रायंगल. नाउ अगर कोप्लानर है तब तो ट्रायंगल बनेगा, और अगर नॉन कोप्लानर फोर्स है तो अगर मैं इसको रोटेट करूं, किसको, रिजल्टेंट को, किसके अबाउट में, ये जो नॉर्मल रिएक्शन के अबाउट में, इसको अगर रोटेट किया जाए इस टाइप का, है ना, जिसका कि तो एक कोन टाइप का बनेगा. सो इट विल बिकम ए कोन. हम क्या कर रहे हैं, ये जो रिजल्टेंट है इसको हम इस एक्सिस के अबाउट में रोटेट कर रहे हैं. सो रोटेट करने से क्या हो जाएगा, एक 3 डायमेंशनल फिगर बनेगा. ये कब बनेगा, जब नॉन कोप्लानर फोर्स होगा दोनों. तो ये जो कोन बना ना, दिस कोन, इसको कहा जाता है कोन ऑफ फ्रिक्शन. सो व्हेन द रिजल्टेंट इज रोटेटेड अबाउट द नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड द कोन ऑफ फ्रिक्शन. इसका इम्प्लीकेशन है, इसका इंपॉर्टेंस है कि कोन ऑफ फ्रिक्शन के बाहर अगर चले जाएगा तो ये मूवमेंट होगा नहीं होगा. सो दैट विल स्टडी लेटर ऑन, but finally you understand cone is when the forces are coplanar, non-coplanar, and when the resultant is rotated about this normal reaction, है ना, ऐसे रोटेट करने से क्या बनेगा, we get a cone, जिसका ये जो वर्टिकल वर्टेक्स है, कोन का क्या रहता है, दिस इज ए कोन. ओके, कैप जैसा, बर्थडे कैप जैसा, दिस इज कॉल्ड कोन. कोन में क्या रहेगा, दिस इज द वर्टेक्स एंगल. तो ये जो वर्टेक्स एंगल का आधा है, दैट इज द सेमी वर्टेक्स एंगल, है ना, दिस इज व्हाट, सेमी वर्टेक्स एंगल. तो सेमी वर्टेक्स एंगल को दिस इज tan फाई का Fs बाई n. अच्छा, ये इसको बोला जाता है कोन ऑफ फ्रिक्शन. दिस 3 डायमेंशनल इमेजिनरी फिगर इज नोन एज कोन ऑफ फ्रिक्शन. एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसको कहा गया था, जिस एंगल में लिमिटिंग आ गया, लिमिटिंग फोर्स मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स आ गया और बॉडी इंक्लाइन करने वाला था. वहां पर भी हमने क्या देखा था, tan थीटा इज इक्वल टू Fs बाई नॉर्मल रिएक्शन. करेक्ट. सो इन दिस केस दोनों ही Fs बाई n है, तो tan फाई इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज tan थीटा. So phi is equal to theta. लिमिटिंग फ्रिक्शन में ये जो कोन का जो सेमी वर्टिकल एंगल है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. अच्छा, इंक्लाइन प्लेन मेथड में जिस एंगल में वो मूव करने वाला है उसको क्या जाता है, एंगल ऑफ रिपोज. ठीक है, जिस एंगल में वो द बॉडी इज टेंड टू मूव. तो हमने क्या क्या देखा अभी, स्टडीड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, then angle of repose, static frictional force, kinetic frictional force. Static frictional force is not a single valued force. Laws of friction we have studied. Okay, experimental determination of coefficient of friction, that also we have studied. This is inclined plane method. Okay, here mu equal to tan theta. This is horizontal plane method.
You know the mass put on the hanger, you know weight of the body, you can find out this. Okay, so मैंने क्या किया, इसको अच्छा से horizontal forces are balanced, it is in equilibrium, sigma of horizontal forces is 0, ऐसे करके इसको calculate किया. But at equilibrium the forces are balanced. Okay. So this is how we determine the coefficient of static friction by horizontal plane method. Okay, very easy experiment. You can do at home also. For that you need not go to laboratory and do it. Okay. This is what angle of repose, angle of inclination of the plane with the block when it just start sliding. ओके, जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, टेन टू मूव, ये सब क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उस समय क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम होता है. ओके, कोई भी टाइम पे अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, ये क्लियर रखो. ये कोन ऑफ फ्रिक्शन हमने एक कोन बनाया, ठीक है, जिसका सेमी वर्टिकल एंगल हमने यहाँ बोर्ड में कैलकुलेट मतलब एक्सप्लेन करते समय फाई लिया था, बट हियर आई हैव टेकन लैम्डा. So lambda is the semi-vertical angle of this imaginary cone. And how this cone is obtained? By rotating the resultant. Whose resultant? Normal reaction or maximum value of static frictional force का जो resultant है, उसको normal reaction जो vertical axis है उसके about में घुमाने से एक imaginary cone बना है. ठीक है, उस कोन को बोला जाता है कोन ऑफ फ्रिक्शन. कोन ऑफ फ्रिक्शन के बाहर अगर जाएगा तो बॉडी का मूवमेंट होगा नहीं होगा, दैट इज अ सेपरेट केस. ओके, दैट इज द फिजिकल significance of cone. So that is, thus we proved that mu s is equal to tan lambda and lambda is equal to theta, both are ratio of fs by r. So angle of friction equal to angle of repose. So this completes our concept of friction. But unless you do numericals based on these concepts, you cannot grasp the entire topic. तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद ओपन करके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करना पड़ेगा. सो वी विल सी इन आवर फ्रिक्शन का जो नेक्स्ट, ये तो बेसिक वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस आस्क्ड इन स्टेट बोर्ड और ICSE CBSE, एंड देन we'll go to one more advanced stage, competitive examination में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है. ओके, so thank you very much.